کلام مقدس کو کھولیں گے اور کلام مقدس کی تلاوت کو غور سے سماعت فرمائیں۔ افسس کے نام رسول اعظم کا خط، افسس کی کلیسیا کو رسول اعظم کا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 10 نمبر آیت ہم تلاوت کریں گے، اور ایمان رکھتا ہوں کہ بڑے عزت و احترام کے ساتھ آپ اس کو سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد ہم اس آیت کی روشنی میں کلام مقدس میں سے سیکھیں گے۔ جی بھائی، کوئی بھی بھائی اس آیت کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے روز میں مضبوط بنوں، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ آمین آمین۔ کلام مقدس کی تلاوت جو آپ کے روبرو کی گئی، جس کو آپ نے بخوبی سماعت فرمایا، جس کے اندر رسول اعظم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہوئے اس بات کو وہ افسس کے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے کہ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں کیا بنو؟ مضبوط بن جاؤ۔ یہ الفاظ، یہ ارشاد اعظم کسی عام شخص کا نہیں ہے۔ یہ الفاظ ایسی شخصیت کے ہیں جس کا تعارف کرانا میں لازمی اور ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ وہ لوگ جو اس عظیم ہستی سے واقف نہیں ہیں وہ بھی اس بات سے واقفیت حاصل کر لیں۔ نمبر 1، افسس کی کلیسیا کو یہ خط جو ہے، یہ رسول اعظم جس کا موجودہ نام پالوس تھا اور جس کا سابقہ نام ساؤل کے نام سے وہ جانا جاتا تھا، اس کے نام یہ منسوب ہے، اور یہ افسس کی کلیسیا کا ایک وقت میں اس کا وہاں پر پاسبان بھی رہا ہے۔ اور جب اس نے اس کلیسیا کو یہ خط لکھا تو اس وقت یہ روم کے شہر میں رومی حکومت کی قید کے اندر یہ مضبوطی سے وہاں پر اس کی نگہبانی ہو رہی تھی، اور اس قید کی حالت کے اندر بھی وہ اس کو فکر کس کی ہے؟ کلیسیاؤں کی۔ اس کو فکر کس کی ہے؟ خدا کے لوگوں کی۔ اور وہ اس حالت میں بھی، چاہے حالت کیسی بھی ہو، وہ لوگوں کے لیے پیغام رسانی پہنچا رہا ہے کہ تم مضبوط ہوتے جاؤ، تم اس کے زور کے اندر اور آگے بڑھتے جاؤ۔ اور بہت سے مفسرین کا یہ دعویٰ اور خیال بھی ہے کہ یہ خط جو ہے یہ 60 اور 61 کے درمیان لکھا گیا۔ اصل میں اس کلیسیا کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی تھی، جس میں سب سے پہلے، کیونکہ کلیسیا جو ہے یہ مسیح کا بدن ہے، اور
مسیح پر ایمان لانے والے خدا کے فضل کی بدولت نجات پاتے ہیں۔ اس خط کے اندر جو 3 پہلوؤں کے اوپر اس نے زور دیا، اس نے لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، سب سے پہلی بات اس خط کے اندر وہ ان کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو کلیسیا ہے یہ مسیح کا کیا ہے؟ بدن ہے۔ یہ کیا ہے؟ مسیح کا بدن ہے۔ یہ کلیسیا کوئی عام لفظ نہیں ہے، یہ لفظ اکلیاس سے لیا گیا ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے پچھلے دنوں میں کلیسیا کے اوپر سٹڈی بھی کروائی تھی اور آپ کو نوٹس بھی دیے تھے۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ دوبارہ لے سکتا ہے، اگر اس کے علاوہ بھی نہیں لینا چاہتے تو آپ کبھی بھی یوٹیوب کے اوپر لاگ ان ہو کر وہاں پر اردو بائبل پریچنگ لکھیں، وہاں پر بھی آپ کو یہ مختلف بائبل کی سٹڈیز جو کہ میں نے کوشش کی ہے کہ خداوند کے فضل سے کہ سلیس طریقے سے لوگوں کو آسان طریقے سے بیان کی جائیں تاکہ لوگ اس کلام مقدس کو بخوبی سمجھ سکیں۔ یہاں پر سب سے پہلی بات کلیسیا جو ہے وہ مسیح کا کیا ہے؟ وہ بدن ہے۔ نمبر 2 جو اس کے اندر جو اجاگر کیا گیا ہے وہ ہے مسیح پر ایمان لانے والے خدا کے فضل سے نجات پاتے ہیں، اور نمبر 3 میل ملاپ کی روح یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ملتی ہے۔ اس خط کے ٹوٹل 6 باب ہیں اور اس کی ٹوٹل ورسز جو ہیں وہ 155 ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چوتھی بات یہ ہے، اور بدی کی طاقتوں سے جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ کلیسیا کو آگاہ کیا جا رہا ہے، کلیسیا کو بیدار کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 تو ان کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ کلیسیا عام گروہ نہیں ہے، کلیسیا عام فرقہ نہیں ہے، کلیسیا جو ہے یہ عام چرچ نہیں ہے، کلیسیا جو ہے زبور 4 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو الگ، دینداروں کو الگ، اور عبرانی زبان کے اندر جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے اس کا میننگ ہی یہ ہے، الگ کیے ہوئے، چنے ہوئے، اور خدا کی خاص ملکیت۔ اب خاص ملکیت کیسے ہوتی ہے؟ اور اس خط کے اندر رسول اعظم جو ہے وہ یہ اس کلیسیا کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مسیح کا بدن ہو، اور بدن بھی ایسا، بلکہ بہت سی جگہوں پہ ایسا بھی لکھا گیا ہے کہ کلیسیا کو دولہے کی دلہن بھی کہا گیا ہے۔ اور دولہا کون ہے؟ یسوع مسیح۔ دولہا کون ہے؟ یسوع مسیح۔ ہمارے مذہبی ایمان کے مطابق مسیح یسوع جو ہے وہ ہمارا دولہا ہے، اور کلیسیا جو ہے وہ ہماری ایمان کے مطابق جو ہے وہ دلہن ہے۔ اور اس لحاظ سے ہی کلیسیا کو مسیح کا بدن کہا گیا ہے، کیونکہ کلام مقدس کے اندر ہم سیکھتے ہیں کہ دلہا اور دلہن کیا ہوں گے؟
एक बदन, एक बदन होगा। एक बदन होंगे। तो एक बदन का मतलब ही ये है, ये असल में एक अलग स्टडी है। अब मैं इसके पीछे अगर जाऊंगा तो ये तो इसका मीनिंग जो है वो इब्रानी ज़ुबान में ट्रांसपेरेंटी है, शफाफ। ट्रांसपेरेंटी जो है, ट्रांसपेरेंटी, आपने शीशा देखा है ना, जिसके दोनों साइडों से नजर आता है, उस शीशे की बात कर रहा हूं, वो नहीं जिससे अपना चेहरा नजर आता है, उसमें ट्रांसपेरेंटी नहीं होती। ट्रांसपेरेंट। सो मियां और बीवी के साथ जो तल्लक है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और होता है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। इसीलिए खुदा ने कहा था कि वो दोनों क्या होंगे? एक बदन होगा। एक बदन होंगे। कि एक यहां पे जो चीज नजर आ रही है, दूसरी साइड से भी वही चीज नजर आती है। दरमियान में पर्दा नहीं है, पर्दा नहीं है। मियां बीवी का तल्लक ऐसा कि जिसके अंदर पर्दा नहीं, ट्रांसपेरेंट। सो कभी वक्त मिला तो मैं इसके बारे में मसीह मैरिज या मसीह दूल्हा और दुल्हन के बारे में, मियां बीवी के बारे में वक्त मिला तो बाइबल मुकद्दस में से हम सीखेंगे मिलकर। ये कलाम दो-धारी तलवार है। ये सबसे पहले मेरे लिए है, और उसके बाद मेरे खानदान के लिए, और उसके बाद जब मैं खुदा के कलाम की मनादी करता हूं तो उनके लिए है। ये दो-धारी तलवार है, ये दोनों साइडों से काटता है। ये पीछे जब आता है मुझे भी काटता हुआ गुजरता है। ये सबसे पहले मेरे लिए होता है। सो इन सब बातों को हमने मिलकर सीखना है। सो इफिसस की कलीसिया को रसूल आजम जो है वो लिखता है कि तुम मसीह की दुल्हन हो, तुम मसीह का बदन हो। फिर वो उनको कहता है कि ईमान लाने वाले खुदा के फजल से क्या हो जाएंगे? नजात पा जाएंगे। फिर आगे बयान करता है, मेल मिलाप की रूह यीशु मसीह पर ईमान लाने से मिलती है। अब फिर उनको ये बात वो उजागर करता है, और बदी की ताकतों से जंग का वक्त आ गया है। किन ताकतों से जंग का वक्त है? बदी की गीत गाते हैं ना हम, जंग जिन्ना दी। हाँ? तो जंग ऐसे नहीं लड़ी जाती। जंगों के लिए बड़े बड़े ओ अपनी आर्मी को ट्रेनिंगें करवाते हैं, उनको जदीद असला, दिन ब दिन नया असला जो है उनके लिए प्रोवाइड करते हैं। फिर उसकी ट्रेनिंग होती है। ऐसा तो नहीं है कि वो प्राणी जो है, प्राणी को तोप हो, जब वक्त आए तो उस वक्त चलेगा। वही अल्फाज जो इसी तरह वो अपने लोगों को, उन कलीसियाओं को कहता है कि तुम क्या करो? गर्ज का मतलब जो मीनिंग है इब्रानी ज़बान के अंदर, इसके जो लफ्ज के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है हासिल कलाम। सारी चीजों का निचोड़, सारी चीजों का निचोड़ जो है वो ये है कि गर्ज किस में? खुदावंद में। सबसे पहले किसके अंदर? खुदावंद में। क्या बन जाओ? मजबूत बन जाओ। मजबूत खुदावंद में पहले, और उसकी कुदरत में। सबसे पहले तो हमें खुदावंद में, कलाम मुकद्दस में बहुत सारी जगहों के ऊपर लिखा हुआ है, बल्कि क्योंकि कलीसिया में आना, कलीसिया में होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कलीसिया में आकर खुदावंद में यानी कि यीशु मसीह में होना, असल बात ये कलीसिया है। किसी चर्च के रजिस्टर के अंदर रजिस्टर हो जाना, उसमें आ जाना, उससे कोई फायदा नहीं है कि जनाब मैं तो
शुरू से मेरे बाप दादा जो है वो तो उस रजिस्टर्ड है उस मिशन के साथ, उसमें है कि हम तो उसमें हैं, हम सल्वेशन आर्मी में हैं, हाँ तो आर्मी को हमें को तैयारी ना है सब। खुदा सबको बरकत दे, हम किसी की भी मुखालफत नहीं करते, लेकिन हम जो बात को उजागर करना चाहते हैं इस आयत की रोशनी में वो ये है कि किसी चर्च में हो जाना, किसी मिशन के अंदर रजिस्टर में नाम रजिस्टर करवा लेना, ये बात नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो ये है कि गर्ज खुदावंद में, किस में? खुदावंद में। ये असल में खुदावंद में का मतलब जो है वो ये है, इसका जो मीनिंग है, इसका जो मतलब है वो ये है कि यीशु मसीह की शख्सियत के अंदर, यीशु मसीह की उसकी शख्सियत के अंदर। अब उसकी शख्सियत कैसी थी? रसूल आजम ही इस बात का इकरार करता है ना कि अब मैं न रहा, मैं जिंदा ही ना रहा, बल्कि क्या है? मसीह मुझ में। वो खुद मसीह के अंदर जाकर कहता है, वो मसीह के अंदर चला गया, मसीह में चला गया, यीशु मसीह की शख्सियत के अंदर जाकर वो एक बात इकरार करता है कि अब मैं जो जिंदा हूं ये ना तो साउल है ना पलूस है, बल्कि मेरा सिर्फ एक ही मिशन है, मेरा एक ही गोल है, मेरा एक ही टारगेट है। वो ये है कि मसीह यीशु की मोहब्बत जो है, इससे ना तो कोई चीज मुझे जुदा कर सकती है, ना इससे मुझे अलग कर सकती है, क्योंकि मैं जिंदा ही इसलिए हूं कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। मैं जिंदा ही इसलिए हूं कि मसीह मुझ में जिंदा है। इसलिए वो कलीसिया को भी ये कहता है कि क्या करो? खुदावंद में, खुदावंद में। अगर हम याद रखें कि दुनिया के अंदर दो शख्सियत पाई जाती है, कितनी? दो। जैसा मैंने बयान किया और बयान कर रहा था कि खुदावंद में होने का मतलब क्या है? यीशु मसीह की शख्सियत। और दुनिया के अंदर दो आदम पाए जाते हैं, कितने? दो। एग्जाम्पल के साइंस आज कहती है कि जमीन गोल है, राइट? इसका एक इधर सिरा है, एक इधर है, एक इधर है, क्योंकि ये गोल है और इसके अंदर सिर्फ दो ही आदम हैं। एक आदम जिसका नसबनामा क्या है? खाक है, और दूसरा आदम खाक से नहीं लिया गया, बल्कि लिखा है कि रूल कुद्दस तुझ पर क्या करेगी? वो साया डालेगी, और वो क्या होगा? वो बलूदे मुकद्दस। अगर आप क्रंथियों के नाम रसूल आजम का खत, उसका 15 बाब और उसकी 17 आयत को गौर से पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? जरा गौर से जल्दी से पढ़ देंगे। पहला 15 बाब और 17 आयत। और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो, बल्कि जो मसीह में हो सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी ज़िंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज़्यादा बदनसीब हैं। आमीन। अगर हम ऐसी कोई सोच रखते हैं तो फिर बदनसीब हैं। और यहां पर
47 आयत के अंदर एक बात लिखी हुई है। 47। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। आमीन। जैसे मैं बयान कर रहा था कि इस दुनिया के अंदर 2 आदम हैं, जो कि पहले का नसबनामा कहां पर है? खाक पर। और दूसरे का नसबनामा कहां पे है? आसमान। वो आसमान के साथ है। जैसा कि लिखा हुआ है कि इब्तदा के अंदर कलाम था और कलाम ही खुदा के साथ था। और मरियम मुकद्दसा को क्या पैगाम मिला कि रूल कुद्दस तुझ पर साया करेगी। जैसा मैंने बयान किया कि शख्सियत में, खुदावंद की शख्सियत के अंदर, यानी कि यस्सु मसीह के ज़ाते अक़दस के अंदर, गर्ज खुदावंद में पहला आदम जिसका नसबनामा खाक, दूसरा आदम जिसका नसबनामा आसमान है, वो कहता है कि तुम उसकी शख्सियत के अंदर। और अगर आप रोमियो के नाम रसूल पौलुस का खत उसका 7 बाब उसकी 4 आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है, इस दूसरे के हो जाओ। किन के हो जाओ? उस दूसरे के हो जाओ। यहां पर मिशनों की बात नहीं हो रही, यहां पे चर्चिस की बात नहीं हो रही, लेकिन यहां पर वो यही कहता है कि उस दूसरे के हो जाओ जिसका नसबनामा कहां पर जाकर मिलता है? आसमान पर। जो खुदा की जात का नक्श है, जो मुर्दों में से जलाया गया। उस दूसरे के हो जाओ जो मुर्दों में से जलाया गया, जो मुर्दों में से जी उठने की कुदरत रखता था। अगले हिस्से में कुदरत में जाकर ये बयान आएगा, जो मुर्दों में से जी उठने की कुदरत रखता था। मसीह का जी उठना जो है ये खुदा की कुदरत है, बेशक ये खुदा की कुदरत है। इसलिए लिखा हुआ है कि गर्ज खुदावंद में, कलाम मुकद्दस में लिखा है ना, खुदावंद का नाम क्या है? मोहकम किला। खुदा का नाम ही मोहकम किला है। इमसाल की किताब उसका 18 बाब और उसकी 10 आयत के अंदर ये बात लिखी हुई है, लिखा हुआ है खुदावंद का नाम मोहकम बुर्ज है और सादिक उसमें भाग जाता है। और इसीलिए रसूल आज़म कहता है कि गर्ज खुदावंद में, खुदावंद में। खुदावंद का नाम क्या है? मोहकम बुर्ज है। जो इसके अंदर आ जाता है, जो मसीह के अंदर आ जाता है, मसीह में, मसीह यस्सु में, खुदावंद में, लिखा है सादक उसमें भाग जाता है और उनमें रहता है। फिर रहता कैसे है? अमन में। फिर बेचैनी नहीं है, फिर अफरा तफरी नहीं है, फिर दुनिया की चीजों की तरफ ध्यान नहीं है। इसीलिए रसूल आज़म पौलुस रसूल कहता है कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? क्या हाल की चीजें, इस वक्त की टेक्नोलॉजी, इस वक्त का जदीद दौर हमें जुदा कर सकता है? नहीं जी, हुण जरा तुहानू नहीं पता, हुण थोड़ा वक्त चेंज हो गया जी, दुनिया मॉडर्न हो गई है, टेक्नोलॉजी का दौर है, कदों की गल कर रहे हो। मगर इन टेक्नोलॉजी को बनाने वाला मैं ही हूं जो तेरी अकल को रोशन करता हूं, मैं ही हूं ना। अय्यूब नबी के सहीफे के अंदर ये बात लिखी हुई है, मैं ही हूं जो तेरा बनाने वाला हूं, मैं ही हूं जो इस पूरे जहान को खलक करने वाला हूं।
सो खुदावन का नाम जो है ये मोहकम किला है, खुदावन में जो आ जाता है वो फिर अमन में रहता है। गलतियों के नाम रसूल पौलुस का जब खात्म पढ़ते हैं उसका 5 बाब और उसकी 27 आयत के अंदर ये बात लिखी हुई है, लिखा हुआ है, और तुम सब जितनों ने मसीह में, किस में, मसीह में, किस में, मसीह में, जैसा मैंने बयान किया कि खुदावंद में का मतलब, उसका मीनिंग जो है वो ये है, यीशु मसीह की शख्सियत में, ज़ाते अक़दस के अंदर, मौलूदे मुक़द्दस के अंदर जो आ जाता है। और इसीलिए गलतियों की कलीसिया को रसूल आज़म कहता है, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, क्या लिया है, बपतिस्मा लिया। याद रखें कि ये जो आप बपतिस्मा लेते हैं ये कोई आम सी बात नहीं है कि आप पानी के अंदर डुबकी लगाई और बाहर आ गए और लोगों को दिखा दिया कि देख ले जी अब हम भी बपतिस्मा याफ्ता हैं। ये आप इस बात को अपने जहन में बैठा लें, अपने दिल के अंदर रख लें कि उस पानी के अंदर कोई वॉशिंग पावर नहीं है जो आपके गुनाहों को धो डाले, मगर जो ये इस रास्तबाजी को पूरा करता है वो रसूल आज़म बयान करता है कि जितनों ने मसीह यीशु में, आप इस रास्तबाजी से मसीह यीशु में शामिल हो जाते हैं, मसीह यीशु में शामिल हो जाते हैं। वक्त मिला तो मैं चाह रहा था कि जितने लोग बपतिस्मा लिए हुए हैं या जो लेने वाले हैं उनके लिए कोई बपतिस्मे की क्लासेस यहां पर हों, बपतिस्मा लेने से पहले भी और बपतिस्मा लेने के बाद भी। ये बात मैंने पास्टर साहब से भी शेयर की, भाई एडसन से भी इस बात को मैंने शेयर किया, भाई दानियल से भी मैंने ये बात की कि ये जरूरी है कि जो भी लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं, अगर वो चाहें तो हम उनके घरों में जाकर, जहां उनकी प्लेस है वहां पे भी जाकर बपतिस्मा लेने से पहले हम उनको बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बपतिस्मे के मीनिंग, बपतिस्मे के मतलब जो है इसको उन तक उजागर करें और उसके बाद वो बपतिस्मा ले, और बपतिस्मे के बाद फिर भी उनकी रूहानी हालत कैसी होनी चाहिए उसके लिए भी बाइबल मुकद्दस में से वो सीखें ताकि रूहानी तौर पर वो आगे बढ़ सके। गलतियों की कलीसिया को रसूल आज़म लिखता है कि तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का। बपतिस्मा जो है ये क्या है, ये मसीह में शामिल होने का, दाखिल होने का, की जिंदगी को नए तरीके से धोना है, मसीह में शामिल होना, खत्म करना है। इसी तरह करंथस की कलीसिया को रसूल आज़म का दूसरा खत उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत के अंदर एक और बात लिखी गई है, बड़ी खूबसूरत बात है। इस वर्ष से बहुत से लोग वाकिफ भी हैं, दोबारा रिवाइज कर लीजिए इस बात को। वहां पे लिखा हुआ है, इसलिए अगर कोई मसीह में है, जो मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें खत्म हो गई। इसीलिए रसूल आज़म कहता है कि अब मैं जिंदा ही ना रहा बल्कि मसीह मुझ में, मेरी पुरानी इंसानियत मर गई है, अब मैं जिंदा नहीं हूं बल्कि मसीह मेरे अंदर जिंदा है और मैं मसीह में। और यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए अगर कोई मसीह में है। इफिसस की कलीसिया को क्या बार बार करवाया जा रहा है, गर्ज खुदावंद में, सबसे पहले खुदावंद में आना है, हमने यीशु मसीह की मसलूबियत के अंदर आना है, फिर नया मखलूक बनता है, फिर नए सिरे से पैदा होता है, नई जिंदगी फिर मिलती है। दुनिया चाहे जितना मर्जी मॉडर्न बनती रहे, लेकिन
हमारे ईमान के मुताबिक, हमारी बाइबल के मुताबिक, मसीहत के मुताबिक, जब तक कोई नए सिरे से नया मखलूक ही नहीं है, वो चाहे अपना एड्रेस चेंज कर ले, अपने बालों की कटिंग चेंज कर ले, उसकी शख्सियत नहीं बदल सकती। अगर बदल सकती है तो जब मसीह यस्सु में वो आ जाता है, फिर उसकी जिंदगी बदल जाती है, फिर उसकी सोचें बदल जाती हैं, फिर उसके ख्यालात बदल जाते हैं, फिर उसका किरदार बदल जाता है, फिर वो नया मखलूक नजर आता है। फिर बेख्तियार निकलता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अगर हम करंथस की कलीसिया को दूसरा खत उसका 12 बाब और उसकी 7 आयत को पढ़े तो वहां पर यह बात लिखी हुई है, मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूं। यहां पे इकरार क्या है? मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूं। 14 वर्ष हुए कि वो क्या हो गया? यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। किसको उठाया गया? जो मसीह में है। और अब भी खुदावंद यीशु मसीह दोबारा जब आने वाले हैं, उस वक्त भी जो मसीह में होंगे वो यकायक आसमान पर उठा लिए जाएंगे। इसलिए रसूल आज़म कहता है कि गर्ज खुदावंद में, ये हासिल कलाम ये है। सो मेरे अजीजों, अगर आज आपकी जिंदगी खुदावंद में नहीं है, आपकी जिंदगी मसीह यस्सु में नहीं है, तो अपने आप पर गौर करें और दोबारा खुदावंद खुदा में आने की कोशिश करें। ज़ाते अक़दस के अंदर आ जाए, मलूदे मुकद्दस के कदमों में आ जाए, क्योंकि वही हमारी नजात है, वही हमारा मोहकम किला है, वही हमारी छुपने की जगह है। वक्त मिला तो इसके दूसरे हिस्से को, कुदरत के जोर को मैं बयान करूंगा बाद में। आए अब हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी अपनी जिंदगी पे गौर करें। गर्ज खुदावंद में हासिल कलाम ये है। गर्ज मैंने जैसे पहले बयान किया कि ये इब्रानी में जो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसके उर्दू में मीनिंग जो है वो ये है कि हासिल कलाम, सारी चीजों का मजमुआ, सारी चीजों का निचोड़ जो है वो ये है कि खुदावंद में आ जाओ। जैसा मिसाल की किताब में हमने पढ़ा कि खुदावंद का नाम ही मोहकम किला है, खुदावंद का नाम ही मोहकम बुर्ज है। और साधक कहां पर दौड़ कर जाते हैं? उसके अंदर चले जाते हैं। सो मेरे अजीजों, अगर आपकी जिंदगी अब तक इस बुर्ज के बाहर है तो आज उस बुर्ज के अंदर आ जाएं। जो मसीह यस्सु में है वो ही उठा लिए जाएंगे। जैसा रसूल आज़म बयान करता है दूसरा करंथियों उसका 12 बाब उसकी 2 आयत के अंदर कि मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूं। 14 वर्ष हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। अगर आप भी आसमान की बादशाहियत के शहरी होना चाहते हैं तो मसीह यस्सु में आ जाएं, मसीह यस्सु को पहन ले, मसीह यस्सु की मसलूबियत पर ईमान ले आए, उसके कफारे पर ईमान ले आए, उसके खून पर ईमान ले आए,
اور उस कलवरी पर बहाए हुए एक एक कतरे पर ईमान लाएं और उसके दफन हो जाने पर ईमान लाएं और उसके जी उठने पर ईमान ले आएं, तो खुदावंद यीशु मसीह में आप आ जाएंगे। जब आप उसके अंदर होंगे तो वो आपकी मजबूत चट्टान होगी, वो आपकी हिफाजत होगी, वो आपकी रहबरी होगी। तब आप कलीसिया का हिस्सा बन जाएंगे, तब आप मसीह का बदन बन जाएंगे, तब आप मसीह की दुल्हन का हिस्सा बन जाएंगे। तब जब दूल्हा आएगा तो अपनी दुल्हन को आपको भी उठा कर ले जाएगा। हालेलुया। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। दुआ करेंगे। हालेलुया। यहोवा पाक तेरा शुक्र। आए हम अपने कदमों पे खड़े हो, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद का शुक्र अदा करें इस प्यारे कलाम के लिए, क्योंकि उसके कलाम में कुदरत पाई जाती है, उसके कलाम में जिंदगी, उसके कलाम में ताकत, उसके कलाम में शिफा है, उसके कलाम में प्यार है, उसके कलाम में मोहब्बत है, उसके कलाम में सब्र है, उसके कलाम सच्चाई है और वो ही सच्चाई हम सबको जिंदगी देता है। आज उस खुदावंद का शुक्र अदा करें, उसका शुक्र अदा करें खुदावंद जिसने अपने बंदा के वसीले से सच्चाई के पैगाम को हम तक पहुंचाया, इस कलाही कलाम को जो खुदावंद ने अपनी रूह की हदायत के मुताबिक हम तक पहुंचाया, उस खुदावंद का शुक्र अदा करें। खुदावंद का शुक्र अदा करें इस बंदा के लिए कि खुदावन अपने बंदा को और अपने मुकाशफात से भरे और इसके वसीला से लोगों की जिंदगियां बदले और यीशु के नाम को जलाल मिले, यीशु का नाम ऊंचा हो, यीशु का नाम हमारी जिंदगियों में देखा जाए और हर जगह सिर्फ यीशु ही का नाम ऊंचा हो, क्योंकि खुदा कदूस रब्बुल फाज रहमतों का बानी सलामती का शहजादा यहाँ मौजूद, वो अपने वादे के मुताबिक यहाँ उतरा है। वो कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते मैं उनके बीच में, मैं उनके दरमियान हूँ, मैं उनके अंदर हूँ और मैं उनके साथ साथ, क्योंकि खुदा कदूस रब्बुल फाज अपना यीशु मसीह के नाम से आज हमारे बीच में मौजूद है। अपने पाक रूह की कुव्वत से हमारी दुआओं को सुनता और वही पाक रूह आज हमसे हम कलाम होता और हमसे गुफ्तगू करता, हमारे सवालों का जवाब देता, हमें सच्चाइयों की तरफ लेके जाता है, हमारी आंखों को खोलता है, हमारी अक्लों को खोलता है, हमारे जहनों को रोशन करता है और ये सिर्फ और सिर्फ खुदावन का पाक रूह ही कर सकता है। आए खुदावंदों के खुदावन, बुजुर्गों के बुजुर्ग और बादशाहों के बादशाह, दिल और दिल की ताक गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते इसने एक बार फिर इस नए साल के लिए, इस खुशियों के लिए जो तूने हम सबको बख्शी और इस पहली मंगल की बाइबल स्टडी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन कि तूने इसे फिर बहाल किया खुदा। कोई भी हालात हो, कोई भी बात क्यों ना हो खुदावन, ये तेरा घर कभी बंद ना हो खुदा, बल्कि तेरे यीशु नाम से तेरे लोग तेरे घर में आए और जिंदगी की बातें सीखे खुदावन, जिंदगी के कलाम को पाए, क्योंकि जिंदगी की रोटी तू है खुदा। अगर हम तेरे पास ना आए तो कहाँ जाए खुदा? तो अपने इस घर को अपने लोगों से भर खुदा, इनके जिंदगियों को बदल, इनके ज़हनों को खोल, इनकी सोचों को बदल, ताकि तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए, क्योंकि तू अपने कलाम में कहता है खुदावन कि जो मेरे छोटे से छोटे खादम को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। अगर लोगों के दिलों में ख्यालात है खुदा बाप, तो इन ख्यालात को बदल दे यीशु जी, क्योंकि कलाम करने वाला सिर्फ तेरा पाक तू है खुदा, अल्फाज बख्शने वाला सिर्फ तू ही है खुदा, हम तो सिर्फ एक आवाज है खुदा, अल्फाज तो तेरे हैं यीशु, क्योंकि तू ही कलामी खुदा है, तू ही हमारे लफ्ज़ों में आता है खुदा, और तू ही इस कलाम को अपने बेटे बेटियों की जिंदगी पे नाजिल फरमा के शिफा देता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इन लोगों के लिए जो तेरे घर में आ चुके, इनके तुझसे जिंदगी हयाती उम्र की दराजी मांगते हैं, तो उनके हाथों की कमाई में बरकत है खुदा, और जो नहीं आ सके खुदा तो उनके लिए तेरे पाक फरिश्तगान मांगते हैं खुदा, उनकी जिंदगियों को बदल खुदा, ताकि उनकी जिंदगियों में सिर्फ तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए, उनकी सोचों को बदल, इस नए साल में उनके ज़हनों को खोल खुदा, ताकि अपनी बरकतों को बटोर सके और तेरे नाम को जलाल मिले, क्योंकि तेरे घर में जिंदगी है, तेरे घर में शिफा है, तेरे घर में रहम है, तेरे घर में फजल है, तेरे घर में प्यार है, तेरे घर में मोहब्बत है खुदा। और आज जो हम इन सब चीजों से खाली और महरूम है खुदा, तो वजह यही है कि हम तेरे घर को अहमियत नहीं देते। हमें कुव्वत दे,
کہ ہم تیرے گھر کو، تیرے کلام کو، تیرے لوگوں کو اہمیت دینے والے Yes, hallelujah. تاکہ تیرا یسوع نام عزت اور جلال پائے. خدا قادر مطلق خدا ہے تو اپنے نام کو جلال دے Yes, تاکہ hallelujah. تیری بزرگی کا جھنڈا گڑ جائے. خدا Yes. تیرے نام کی حمد ہو، تیرے نام کی ستائش ہو، تیرے نام کی پرستش ہو. خدا Yes, Lord. کیونکہ تو ہی قادر مطلق خدا ہے. ہم تیرا شکر ادا کرتے اس پوری میٹنگ کے لیے. جب ہم یہاں سے رخصت ہوتے تو اپنے پاک فرشتگان کو خیمہ زن کر خداوند Yes. تاکہ تیرا یسوع نام عزت اور جلال پائے. Yes, Lord. ہم سب کو اپنے بزرگ ہاتھوں کے پناہ میں پاک فرشتگان کی نگہبانی میں لے کے جا. اور جو لوگ خداوند نہیں آ سکے تو ان کو ایک بار پھر تجھ سے منت اور التجا کرتے ہیں ہم سب، تو ان کی زندگیوں کو بدل خداوند، اور انہیں قوت وقت مہیا کر کہ وہ تیرے گھر میں آئیں Yes, اور تیرے نام کو اونچا کرے. خدا کل کی ساری عبادت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تیرے گھر تیرے لوگوں سے بھر جائے اور تیرا یسوع نام عزت اور جلال پائے. خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں اپنے جمعہ کی عبادت کے لیے، ساری پریسائڈنگ کے لیے، سارے گیتوں کے لیے، سارے ساز بجانے والوں کے لیے، اپنی کوائر ٹیم کے لیے، میسج کے لیے، پریسائڈنگ کے لیے، اور تیرے بیٹے بیٹیوں کے لیے جو تیرے گھر میں آتے ہیں. خداوند Yes, Lord. ان سب کے لیے تجھ سے برکت برکت اور برکت مانگتے ہیں. اے خداوند تو اپنے کلام کو نازل فرما کے ہر ایک بیٹے بیٹی کو چھو اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر تاکہ تیرا یسوع نام ہم سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے. خدا صرف ہم نہیں بلکہ تو ہی ہم میں نظر آئے. خدا ہم اپنی کسی بات پہ فخر نہیں کرتے، ہم کس بات پہ فخر کریں، ہر چیز تیری دی گئی ہے. خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے، ہم تیرے نام کو چھوتے، ہم تیرے آگے جھکتے اور تجھے سجدہ کرتے کیونکہ تو رب الفاج ہے. خدا تو لشکروں کا خدا ہے، تو اپنے نام کو جلال. یہ سب کچھ مانگتے اس ایمان سے خدا کہ تو نے جو اپنے کلام میں کہا ہے کہ جو کچھ تم میرے یسوع نام سے چاہو گے تمہارے لیے ہو جائے، جو کچھ تم میرے یسوع نام سے مانگو گے تمہیں مل جائے. Yes, yes. خداوند آج ہم سب ایک دل ایک جان ایک روح ہو گئے Yes. تیرے گھر کو خداوند تیرے یسوع نام سے مانگتے ہیں کہ خداوند تیرا گھر تیرے لوگوں سے بھر جائے، تیرا گھر تیری کلیسیا سے بھر جائے، Yes, تیرا Lord. گھر تیرے بیٹے بیٹیوں سے بھر Yes, جائے، Lord. اور تیرے گھر میں تیرا یسوع نام عزت اور تو اپنے جلال. بیٹے بیٹی کو ہم تیار سب کی کر زندگیوں میں تیرا تیار یسوع نام کر. عزت اور جلال. تے خاص طور پہ اپنے بزرگ پاسٹر کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. Yes. ان کی ساری کمزوریوں کو دور کر خداوند، ساری گھٹنے کی اور ٹانگوں کی ساری کمزوریوں کو اپنے لہو کی قدرت سے چلا. Yes, تو hallelujah. اپنے کلام میں کہتا ہے میں تجھے بڑھاپے میں بھی عقابوں جیسا زور عطا کروں گا. خدا تو اپنے کلام کو اپنے بیٹے پہ، اس کی ہڈیوں پہ، اس کے گوشت پہ، اس کی پوشش پہ اور اس کی نسوں پہ اور اس کی تمام خداوند جوڑوں پہ نازل فرما کے اپنے بیٹے کو کامل طور پہ شفا دے Yes. تاکہ تیرا یسوع نام عزت اور جلال. اور جو کوئی خداوند ہم میں بیمار اور کمزور ہے خداوند تو اپنے لہو کی قدرت سے انہیں دھو صاف کر اور ان کی زندگی میں معجزات کر. خدا تو معجزات کا خدا ہے تو اپنے یسوع نام سے خدا باپ انہیں چھو، اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے انہیں شفا دے اور اپنے نام کو جلا. یہ سب کچھ مانگتے پاتے تیرے مبارک میٹھے جلالی یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین. جس نے ہمیں سکھایا اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات چاہتا ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح اپنے قرض قرض معاف معاف کرتے ہیں تو بیماری قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے. آمین. خدا باپ کی محبت، یسوع مسیح کا فضل اور پاک روح القدس کی رفاقت اور شراکت آپ سب لوگوں کے ساتھ اور دنیا کے کل ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے. جب میرا اور آپ کا خداوند یسوع آسمانوں پر آئے تو ہم اڑ کے بادلوں پہ اس کا استقبال کریں اور ساری کلیسیا کہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین آمین آمین.